बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. I hope you will be enjoying good health. My dear students, in previous lecture we studied about poem Rain in Summer. Reading, translation, words meaning and bookwork have been completed. Today we are going to study Review 1. Review 1 consists of grammar and composition. The first question is words synonyms. Synonyms are called the similar meanings. The first word is street. Open your book, page number 48, part A. Consult a thesaurus to find the synonyms of the following words. आपको यहाँ पर words और synonyms नज़र आ रहे हैं. अब हम इनको सीखते हैं. My dear students, as you know, review means दोबारा देखना. These parts have already done in different ways in previous lectures. And review is consist on grammar work. So the first question is about synonyms, words similar. There are many words which have similar meanings. Here we have to give different meanings of street. Street का मतलब होता है गली, लेन. मैंने आपको रेन इन समर में भी पढ़ाया कि आपने स्ट्रीट का मतलब लेन भी पढ़ा. अब यहाँ पर उन्होंने 2 या 3 आपसे डिमांड किए हैं कि सिनोनिम्स आपने बताने हैं. तो सबसे पहले स्ट्रीट. स्ट्रीट मीन्स लेन, पैसेज, एवेन्यू. कोई से भी हो सकते हैं, आप तीनों में से कोई से 2 लिख सकते हैं. नंबर 2 शॉपिंग सेंटर, बाज़ार, मॉल. मार्केट का है शॉपिंग सेंटर, बाज़ार, मॉल. थर्ड वन इज़ बॉय. बॉय मीन्स लड़का. लैड, किड, मेल. लैड, किड, मेल किड. मेल किड. नंबर 4 बीट. हिट, स्ट्राइक, टू हर्ट. हिट, strike, to hurt. Pain, ache. The correct pronunciation of this word is not h. H नहीं है, ache. Ache. Suffering, to feel uncomfortable. So these were the words synonyms. We have to do a lot of work of review 1 today, so keep going on learning and learning. Now part B, look up the meaning of the following words in dictionary. My dear students, you have already know about the use of dictionary in class. I have taught you the correct usage of dictionary. It is very important for all the students to keep learning and keep exploring the words in dictionary. Here are different words which you have to explore in dictionary. The first word is ample. A-M-P-L-E, ample. Ample mean काफ़ी, यानी बहुत मुनासिब होना, काफ़ी तादाद में मौजूद होना. Ample. This space is ample for party. Sentence आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, but first of all you will have to learn the correct meaning of the word.
So the correct meaning of this word is काफ़ी. Ample mean काफ़ी. Ample, काफ़ी. Now have a look. Ample, काफ़ी, काफ़ी. This place is quite ample for the party. Batch, batch mean a group. Batch, group. My brother is in the last batch of NCC. NCC stands for NCC, National Cadet Corps. National Cadet Corps. My brother is in the last batch of NCC. Full stop. My dear students, always keep in mind, you will have to put a full stop at the end of every sentence. If you will not put a full stop at the end of the completion of sentence, your sentence will not be considered as a correct one. The other word is passion. 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 You have gone through this word in class 5. Passion means शौक या जुनून. ऐसा शौक़ जो जुनून की हद तक हो. जी, आपके अपने अपने शौक़ होंगे जो आपके जहन पर इस कदर हावी हैं, ऑक्यूपाइड हैं आपका जहन उनसे कि आपका पैशन बन गया है. माई पैशन इज़ टू रीडिंग बुक्स या सिंगिंग इज़ माई पैशन. बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट. Rebate, rebate. The other one is rebate. Rebate means कम करना. किसी भी कीमत को, किसी भी प्राइस को कम करना, जिसमें आप किसी भी तरह के जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट है वो आ जाती है, या आपकी दूसरी चीज़ें जो आप कम कर सकती हैं, उसमें आप rebate का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं. Rebate, कम करना. Government has rebated the price of petrol. Government has rebated the price of petrol. Full stop. Plenty. Plenty means बहुतात. Plenty, बहुतात यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हो तो उसको प्लेंटी कहते हैं. There are plenty fish in the pond. अब फ़िश और फिशेस याद रखिए हमेशा कि जब हम एक तरह की मछलियों की बात कर रहे हों तो प्लूरल में हम फ़िश इस्तेमाल करते हैं. But when we talk about different type of fish, we can use fishes. There are plenty fishes or fish, both words are correct. Plenty of fish in the pond. So these were the words which you will have to use in your own sentences. You can make your sentences by your own, but keep it in mind the sentence should be correct in meanings. C part. Read the following and underline the pronouns. आपने नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ना है और प्रोनाउंस लगाकर उनको फिल करना है. What is pronoun? What is the definition of pronoun? A pronoun is used instead of noun. A pronoun is used instead of noun. Noun की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को pronoun कहते हैं. A pronoun is used instead of noun. The first sentence is birds build dash nests in trees. परिंदे दरख्तों पर अपना घोंसला बनाते हैं. What would be the correct word?
द करेक्ट वर्ड इज देयर. Birds build their nests in trees. Birds build their nests in trees. The second sentence, Shahid has lost his watch. अब यहाँ पर relative pronoun आया है. अब जाहिर है शाहिद जो है वो एक मेल है और मेल के साथ ही के साथ his. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जेंडर हिज इस्तेमाल हुआ है. शाहिद हैज़ लॉस्ट हिज वॉच एंड कैन नॉट फाइंड इट. शाहिद अपनी घड़ी गुमा चुका है और वो इसको नहीं तलाश कर पा रहा है. पहले में हिज और दूसरे खाली जगह में इट. नंबर 3, The horse fell down and broke its leg. घोड़ा गिर पड़ा और अपनी टांग तोड़वा बैठा. Its. The horse fell down and broke its leg. Full stop. Number 4, Rabia, you are a lazy girl. You will be the correct word to fill in the blank. Rabia, you are a lazy girl. Number 5, Aslam brought his book and laid it on the desk. Aslam brought his book, his or it. Aslam brought his book and laid it on the desk और उसने इसको डेस्क पर रख दिया. So these were the pronoun which you will have to use to fill in the blanks. Now part D. D part में आपने make questions of the following sentence. नीचे दिए हुए जुमलों को आपने सवालिया जुमलों में तब्दील करना है, यानी उनसे सवाल बनाना है. यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पर आपने उससे सवाल तैयार करना है. अब सेंटेंस में रीड आउट कर रही हूँ आपके लिए. ही इज़ रनिंग इन द प्लेग्राउंड. फुल स्टॉप. वो मैदान में दौड़ रहा है. अब इस सेंटेंस को सुनने के बाद आपके माइंड में क्या सवाल बनता है? वेरी गुड. वो कहाँ दौड़ रहा है? तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? वेयर is he running? Where is he running? Question mark. My dear students, before going towards, I would like to define the importance of question mark. Importance of question mark is that if you will not put a question mark at the end of the sentence in which a question is asking, a query is asking from someone, your sentence will be considered as a wrong. Question mark is first and foremost thing for every query, for every question. So this is called question mark. It shows that something is being asking in this sentence. मतलब ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करता है कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है. बट कीप इट इन माइंड, यू विल हैव टू पुट अ प्रॉपर क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क की फॉर्मेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए. एक इस तरह आपने फॉर्मेशन देनी है उसको. आप अक्सर क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं या ऐसे डाल देते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क इज़ दिस, लाइक स्मॉल. उर्दू में जैसे आप दाल लिखते हैं, दाल और फिर नीचे एक छोटी सी लाइन और उसके नीचे एक डॉट. लाइन बहुत बड़ी भी ना हो जाए, बहुत छोटी भी ना हो जाए. प्रॉपर आपने फॉर्मेशन देनी है क्वेश्चन मार्क के लिए. तो पहले सेंटेंस का सवाल क्या बना? वो मैदान में दौड़ रहा है. क्या वो मैदान में दौड़ रहा है? वेयर इज़ ही रनिंग? वो कहाँ दौड़ रहा है? ये भी हो सकता है कि क्या वो मैदान में दौड़ रहा है, बट ये इजी सेंटेंस है जो मैंने आपको लिखवाया है. वेयर इज़
he running? वो कहाँ दौड़ रहा है? The next sentence to go. They are sitting in the examination hall. वो कमरे इम्तिहान में बैठे हुए हैं. Full stop. What will be the question of this sentence? वो कहाँ बैठे हुए हैं? Where are they sitting? Question mark. Where are they sitting? वो कहाँ बैठे हुए हैं? Third one. He is watching television. वो टीवी देख रहा है. What will be the question of this sentence? Excellent. वो क्या देख रहा है? What is he watching? What is he watching? वो क्या देख रहा है? And as usual, you will have to put a question mark at the end of the sentence. Number 4. She is writing a letter to her uncle. वो अपने चचा को ख़त लिख रही है. The question will be, to whom is she writing a letter? वो किसको ख़त लिख रही है? To whom, किसे? To whom is she writing a letter? Question mark. They are going to market for shopping. वो ख़रीदारी के लिए मार्केट जा रहे हैं. सवाल बनेगा, Why are they going to market? वो मार्केट क्यों जा रहे हैं? Why are they going to market? वो मार्केट क्यों जा रहे हैं? So these were the questions which we had to make by these simple sentences, and we learnt about the correct formation of question mark. Formation means बनावट और question mark means सवालिया. जो ये यहाँ पे निशान लगता है, उर्दू में उसको सवालिया निशान कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं. तो ये आपका सवालिया निशान और क्वेश्चन मार्क के मुतालिक आपने सीखा. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट, पार्ट ई. सेपरेट regular and irregular verbs from the given list and put them in the relevant column. Put them in the relevant column. यानी सवाल में पूछा गया, कहा गया है, सेपरेट मीन्स अलहदा कीजिए रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को जो लिस्ट में दिए हुए हैं और उनको मुतल्लिका कॉलम में लिखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू डिफाइन what are regular and irregular verbs. Regular verbs. Regular verbs का मतलब होता है ऐसे verbs जिनकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है. सेम यानी उनके आखिर में ed आता है. Regular verbs. अब यहाँ पर आपको मिसाल में देती चलूँ कि ऐसा वर्ब जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आखिर में ईडी आए तो वो रेगुलर वर्ब होगा. मीन्स हेल्प. सेकेंड फॉर्म क्या है हेल्प की? हेल्प्ड. हेल्प्ड. यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म एंड दिस वन वुड बी द थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म हेल्प, सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड and the third form is also help. So the verb which have same second and third form by using ed at the end of this word will be called regular verb. So this is the indication of regular verb
कि जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड में आपको ईडी नज़र आए तो उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। अब इर्रेगुलर वर्ब क्या हो गए? डेफिनेटली इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बेशक एक जैसी हो लेकिन उनके एंड पर ईडी नहीं आता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, देन बॉट। You can see both form of verb, second and third, both forms of verb are although same, but this verb does not belong to regular verb. It is called irregular verb. Irregular verb के लिए क्योंकि इसके आखिर में ed नहीं आता, जिस verb के आखिर में ed आएगा वो regular और जिसके आखिर में ed नहीं आएगा वो इर्रेगुलर। सो ये बहुत ही आसान आपके लिए एक निशानी है समझने के लिए कि आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। तो अब आपने लिस्ट में जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनको रेगुलर वर्ब्स के कॉलम में लिख देना है और इर्रेगुलर वर्ब्स को इर्रेगुलर वर्ब्स के कॉलम में। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग about regular and irregular verbs and then we will separate them. Attain, buy, help, cut, play, keep, take, invite. Now first of all we will separate regular verb, but you will have to know about the correct second and third form of each of the verb given in this list. Attain, attained, attained. So this will be a regular verb. Attain is the regular verb. We will put in the column irregular verb. Buy की second form bought, bought. So it would be a irregular verb. Help, helped, helped. It is regular verb because at the end of this verb we will put ed. Help, helped, helped. Regular verb. Cut. Although cut की तीनों फॉर्म सेम हैं but उसके एंड पर ed नहीं आता, this is why it will go with irregular verb. Cut, cut, cut. Cut is an irregular verb. Play, played, played. So play will be a regular verb. Very good. Keep, kept, kept. Keep is an irregular verb. Take, took, taken. It will be an irregular verb. The last one is invite, invited, invited. So invited indicates that at the end of second and third form we use d or ed. So it will be a regular verb. So these were the regular and irregular verbs. Now come to part F. Punctuate the following sentences. आपने sentences को punctuate करना है। Punctuation के लिए ज़रूरी है कि आपको punctuation marks का अच्छी तरह मालूम हो। अगर आप punctuation marks को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। The first word is alas, we have lost the match. alas का ALAS alas और उसके बाद exclamation mark और at the end of the sentence यानी मैच के बाद या ये सेंटेंस मुकम्मल होगा और मैच के एंड पे आपने फुल स्टॉप पुट करना है।
My dear students, I am writing this sentence in dotted form, but you will have to write it in complete form. The second word is the second sentence. Islamabad is the capital of Pakistan. You know that proper noun are always written in capital letter. Islamabad. Islamabad is the capital of Pakistan. Full stop. You can see both letters of proper noun. Islamabad ka I और Pakistan का P. We have placed proper noun in capital letters. You can see Pakistan, Islamabad. Both are proper noun. Number 3. Hi, Hina, stop. Hey. अब यहाँ पर आपको एड्रेस किया जा रहा है, तो लेटर का जो चुनाव है वो सोच समझ के करना है आपने कि सेंटेंस जब शुरू होगा तो आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. हे, हिना, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क और हिना का HINA, हिना. स्टॉप, स्टॉप, फुल स्टॉप. हिना का H और हाई का H दोनों कैपिटल आएंगे बिकॉज H से सेंटेंस शुरू हो रहा है और हिना जो है वो प्रॉपर नाउन है. नंबर 4. आई विल कम बैक एट 7 o'clock इन द इवनिंग. अब यहाँ पर आपको I कैपिटल लिखना है बिकॉज यू आर स्टार्टिंग द सेंटेंस एंड व्हेन यू स्टार्ट द सेंटेंस यू विल हैव टू पुट अ कैपिटल लेटर. I डॉटेड फॉर्म में लिख दिया मैंने बाकी सारा. और यहाँ पर O क्लॉक इन द इवनिंग, और इन द इवनिंग के आगे आपने फुल स्टॉप पुट करना है यहाँ इवनिंग. ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे और आप समझ जाएं, बट आपने पूरा सेंटेंस अपनी कॉपी में लिखना है. नंबर 5. माई ईमेल एड्रेस इज़ cgrs@yahoo.com. अब ईमेल एड्रेस लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपना पंक्चुएशन कंप्लीट करना है. सबसे पहले आपने स्टार्ट किया जुमला और आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया. माई ईमेल एड्रेस इज़. ठीक है, ईमेल एड्रेस को आपने इज़ के बाद कोलन्स लगा देने हैं और CGRS, ये ए भी ठीक है, आपने उसको yahoo.com, फुल स्टॉप. yahoo.com. My email address is cgrs@yahoo.com. Full stop. Page number 50, G part. Fill in the blanks with linking verb from the given list. यहाँ पर linking verb हैं, आपने उनसे खाली जगह को पुर करना है. लिंकिंग वर्ब यानी एक ऐसा वर्ब जो दूसरे वर्ब से, जो दूसरे सेंटेंस से आपको ताल्लुक़ जोड़ता हुआ दिखाई देता है. यहाँ पर लिस्ट है: कीप्स, टेस्ट्स, प्रूव, लुक्स, साउंड. द फूड tastes delicious. Number 2, they always prove to be the best debaters. Number 3, Bilal looks quiet. Number 4, my neighbors sound very angry. Number 5, my sister keeps her books safe. I repeat. Number 1, tastes. Number 2, prove. 3, looks. 4,
sound, 5 keeps. H part, fill in the blanks with correct preposition. Prepositions के साथ आपने खाली जगह को पुर करना है. Number 1, the moon revolves around the earth. Around, AROUND, around. चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है. revolves, घूमता है. Number 2, a fair little boy sat under a tree. खाली जगह में लिखेंगे under, UNDER, under. Number 3, Humpty Dumpty sat dash a wall. Humpty Dumpty, do you remember Humpty Dumpty? Have you ever read this poem? Very interesting poem when you were young. But I think you were young नहीं, बल्कि आप जब बच्चे होंगे जब आपने पढ़ी होगी. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. You know? Humpty Dumpty sat on a wall. Number 4, she is afraid of the dog. Afraid of, OF, of. Number 5, it has been raining since yesterday. My dear students, I will definitely describe you the use of since and for as soon as possible. ये बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए कि since और for का करेक्ट इस्तेमाल सीखें. इन माई नेक्स्ट लेक्चर्स मैं कुछ अरेंज करूँगी कि आपको सिंस और फॉर के सही इस्तेमाल बारे बताया जा सके. यहाँ सिंस आएगा SINCE. यहाँ मैं आपको छोटा सा हिंट देती चलूँ कि सिंस आप करेक्ट टाइम, यानी आपको जहाँ बिल्कुल सही पता हो कि आपने सही वक्त का तयन हो, करेक्ट टाइम पीरियड आपको पता हो, तो आप वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं. और फॉर आप इस्तेमाल करते हैं जस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है, कि फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर नेक्स्ट डे. यहाँ पर आपको सिर्फ टाइम पीरियड का पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन से पिछले हफ्ते के 2 दिन, उससे पिछले हफ्ते के 2 दिन, या पिछला महीना, फॉर द लास्ट 2 month, यहाँ पर आप बिल्कुल एक ऐसा टाइम पीरियड बयान कर रहे होते हैं जिसमें आप एक्यूरेट नहीं होते. लेकिन सिंस में आपको पता होता है कि कल गुज़री हुई मॉर्निंग से बारिश हो रही है, वो यहाँ 1927 से रह रहा है. तो इस तरह आपने जहाँ पे कन्फर्मेशन हो तो सिंस इस्तेमाल करना होता है, और जहाँ पर आपने सिर्फ टाइम पीरियड बताना होता है, पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है, वहाँ पर आप फॉर इस्तेमाल करते हैं. नंबर 6, आई लेफ्ट हिम अवे, मैं उसे छोड़ आया. सो दीज वर द prepositions ऑफ पार्ट H. Now come to the part I. Separate countable and uncountable nouns from the given list and put them in relevant column. मैं आपको रेगुलर एंड इनरेगुलर वर्ब का बता चुकी हूँ. अब यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं बताती चलूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल एक्चुअली कहते किसे हैं. आपको काउंटिंग का तो पता होगा कि काउंटिंग इनफैक्ट क्या होती है. काउंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को गिनना, ठीक है. तो काउंटेबल, वो चीज़ जिसको आप गिन सकें, शुमार कर सकें. काउंटेबल नाउन्स. और यहाँ पर है अनकाउंटेबल नाउन्स. अब काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में आपको ये नहीं कि आप उनको गिनते रहें. कीप इट इन माइंड, द थिंग्स यू कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स एंड द थिंग्स यू कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स.
अब यहाँ पर एक लिस्ट है, शुगर, रुपीज़, पेन्स, पेंसिल्स, सॉल्ट, टी, वाटर एंड कप। अब इसमें से आपने ढूंढना है कि काउंटेबल कौन सा है। शुगर, क्या शुगर आप गिन सकते हैं? यू कैन मेजर द शुगर बट यू कैन नॉट काउंट द शुगर। शुगर होती क्या है? शुगर चीनी, एग्जैक्टली। तो चीनी को आप गिन सकते हैं बैठ के, ये 1 दाना है, ये 2 दाने हैं, इसलिए सालों लग जाएंगे, आप 1 किलो चीनी नहीं गिन पाएंगे। तो शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। रुपीज़, मनी, दौलत, बहुत आराम से गिन सकते हैं। वो करोड़पति है, वो अरबपति है, मिलियनर है, बिलियनर है, और बस पैसों को तो गिनना कोई मसला ही नहीं है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो रुपीज़ जो हैं वो काउंटेबल नाउन है। अब अगला है पेन्स। आपके पास कितने पेन्स हैं आप काउंट कर सकते हैं। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं आपके पास, आप काउंट कर सकते हैं। तो आपके पेन्स जो हैं वो काउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे। उसके बाद पेंसिल्स एज वेल, आप गिन सकते हैं कि मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, 4 हैं, 5 हैं। सो यू कैन काउंट दीज पेंसिल्स एज वेल। सॉल्ट, सॉल्ट, शुगर गिन सकते थे? नो, तो हम सॉल्ट भी नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। टी, चाय, चाय की पत्ती को गिन सकते हैं आप? नहीं ना, तो फिर चाय कहाँ जाएगी? अनकाउंटेबल नाउन के खाने में। वाटर, वाटर कैन बी मेजर्ड बट कैन नॉट बी काउंटेड, तो अनकाउंटेबल में आ जाएगा वाटर। Cup, I have 3 cups, 4 cups, 5 cups and much more. So cup will be uncountable noun. My dear students, आपको मैं यहाँ बताती चलूँ कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको आप डेली यूज़ में बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और वो अनकाउंटेबल होते हैं। अब आपने बताना है कि कुछ इमोशंस हैं कि वो काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं। अब यहाँ पे तो आपका जो ये गिवन एक्टिविटी थी वो तो ख़त्म हो गई इससे रिलेटेड, लेकिन आपको यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप अक्सर वो सुने तो आपको पता हो कि ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पीनेस, जी हैप्पीनेस क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? कौन बताएगा इसका आंसर? सोचें, मुझे पता चल जाएगा कि आपने सोच लिया है। जी बिल्कुल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में से हैप्पीनेस अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आप हैप्पीनेस को काउंट कर सकते हैं कि मुझे 2 किलो खुशी हुई, मुझे 3 किलो खुशी हुई? ऐसा कभी आपने काउंट किया है? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज इमोशंस कैन नेवर बी काउंटेड। तो हैप्पीनेस इज़ अनकाउंटेबल नाउन। पेन, पेन क्या है? दर्द, तकलीफ़, सफरिंग। अब पेन अगर कोई कहे कि बताइए कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप क्या कहेंगे कि पेन आपने नहीं गिना कभी कि आपको 5 किलो दर्द हो रहा है या 6 किलो दर्द हो रहा है, ऐसा आप काउंट कर सकते हैं? नेवर। सो पेन विल बी अनकाउंटेबल नाउन। जिस चीज़ को आप काउंट कर सकें, जिस चीज़ को मेजर आप कर सकें, लेकिन काउंट करने को कह रहे हैं, वो मेजर नहीं करने को कह रहे, काउंट कर सकें, तो वो काउंटेबल नाउन होता है। और जिस चीज़ को आप काउंट ना कर सकें वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। हर चीज़ का एक नाम होता है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका नाम ना हो, और हर नाम वाली चीज़ और हर नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी चीज़ आपकी किचन में है, आपके डेली यूज़ में है, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो इट विल बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स just to clarify the concept of countable and uncountable. Page number 51, fill in the blanks with suitable words given below. यहाँ पर खाली जगह को मुनासिब अल्फाज लगाकर पुर करना है। हॉकी, bring, promise, life, depend. You should always fulfill your promise. पहले में
promise. Number 2, go and bring a glass of water for me. जाओ और मेरे लिए पानी का एक ग्लास ले आओ. Number 3, he was playing hockey in the playground. वो मैदान में हॉकी खेल रहा था. पास्ट टेंस है, was है. Number 4, you should not depend on others. अब यहाँ पर पेन था, यहाँ पर पेन भी आ सकता है, डिपेंड भी आ सकता है. यू शुड नॉट पेन अदर्स, यहाँ ऑन नहीं आएगा. यू शुड नॉट पेन अदर्स या यू शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. द करेक्ट वर्ड वुड बी डिपेंड. पेन को कट करके आप डिपेंड लिख दीजिए, DEPEND, डिपेंड. Number 5, we must help the person whose life is in danger. हमें ऐसे शख्स की मदद करनी चाहिए जिसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो. K part, fill in the blanks with appropriate adverbs of frequency from the list given below. अब यहाँ पर adverbs भी आ गए हैं. This is also the part of speech. Never, sometime, often, usually, always. The first word is the postman called often. They sometime come to see us. Number 2, they sometime come to see us. Number 3, she always tries to do her best. यहाँ पर to do her best. She always tries to do her best. Number 4, the train usually arrives late. The train usually arrives late. Number 5, I have never seen him. I have never seen him. L part है, complete the following sentences by filling in a or an or the as may be suitable. लास्ट लेक्चर में आपको मैंने आर्टिकल्स समझाए थे. आई थिंक रेन इन समर में आर्टिकल्स थे और हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और हमने स्पेशल यूज़ भी पढ़ा था आर्टिकल का. नाउ प्रैक्टिस द आर्टिकल. ही कैन प्ले अ फ्लूट. ही कैन प्ले अ फ्लूट. Number 2, copper is the useful metal. The useful metal. He is a European. European. अब यहाँ पर आ इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन के ये जो साउंड है ये वाई की साउंड के साथ आती है. तो वाई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से आप क्या करते हैं? ए लगाते हैं, एन नहीं. अब यहाँ पर यूरोपियन नहीं कहा उसने, यूरोपियन. यूरोपियन, यू की आवाज़ नहीं निकाली, वाई की आवाज़ निकाली है, यूरोपियन. तो यूरोपियन में जो साउंड निकली है वो वाई की निकली है और वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? ए. ही इज़ अ यूरोपियन. हिज फादर इज़ एन SDO. SDO. हिज फादर इज़ एन SDO. अब SDO की साउंड जो है वो क्यों यहाँ पर उसके इससे पहले एन लगाया है? माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इट इन माइंड व्हेन यू यूज़ एब्रीविएशन, जैसे आप MA लिख रहे हैं या आप SDO लिख रहे हैं, तो इसकी जो साउंड है यहाँ पर आप इससे पहले एन इस्तेमाल करते हैं. सिर्फ आप याद रखें, आपने एब्रीविएशंस के तौर पर जब अगर कुछ इस्तेमाल करना है और उसकी साउंड जो है वो आपके वोवल से मैच कर रही है तो आप एन लगाएंगे. लेकिन जब आप इन एब्रीविएशंस को कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे तो आप एन नहीं लगाएंगे. तो आप एन
नहीं लगाएंगे। अब इस तरह जैसे कल हमने सीखा कि हमने कहाँ पर एन और कहाँ पर आ लगाना है, तो आपने जहन में रखना है कि अगर आप एब्रीविएशंस यूज़ कर रहे हैं, एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म जैसे MA, SD, O वगैरह वगैरह, तो आपने एन इस्तेमाल करना है। हालांकि ये वॉवल से शुरू नहीं हो रहा, ये भी वॉवल से शुरू नहीं हो रहा, बट दीज बोथ वर्ड्स साउंड, ये एस एंड एम, तो ये ए की साउंड और ये ई की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमने इसको एन। लेकिन जब हम इनको खोल देंगे तो ये MA क्या बन जाएगा, मास्टर्स, मास्टर्स इन आर्ट्स। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि ये पूरा इसका एब्रीविएशन ओपन हो गया है, तो आ इस्तेमाल करें। अव्वल तो इससे पहले इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा ही इज़ मास्टर्स इन आर्ट्स, ही इज़ मास्टर्स इन आर्ट्स। लेकिन याद रखिए कि आपने एब्रीविएशंस इस्तेमाल करते हुए अगर साउंड के हिसाब से एन इस्तेमाल कर दिया तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा, और अगर आपने आ इस्तेमाल किया तो वो इनकरेक्ट होगा जी। तो हमने ही इज़, हिज फादर इज़ एन SDO। नंबर 5, माई ब्रदर इज़ इन आर्मी, माई ब्रदर इज़ इन द आर्मी, इज़ इन आ आर्मी नहीं आएगा, इज़ इन एन आर्मी नहीं आएगा, इन द आर्मी। नंबर 6, दे रन एन NGO, दे रन आ NGO। अब यहाँ पर दे रन आ NGO, अब यहाँ पर AEIOU वही वाला, अब यहाँ पर आपने फॉर्म देखी NGO, एब्रीविएशन आपको मिल गया। एब्रीविएशन की जो फर्स्ट साउंड है वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, N, 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 N साउंड दे रहा है, तो E जो है वो क्या है, वॉवल, और वॉवल से पहले हम क्या लगाते हैं, N, तो NGO से पहले हम क्या लगाएंगे, N। दे रन एन NGO, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जब इसको ओपन कर दिया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर हम आ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब ये शॉर्ट फॉर्म में आ गई है तो हमने देख लिया कि इसकी साउंड जो है वो वॉवल से मैच कर रहे हैं, एन से मैच कर रही है, तो एन ई से साउंड कर रहा है, और इसलिए हमने इसको यहाँ पर एन इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपके इंग्लिश बी के काम में शामिल हो जाएंगे, और इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज एंड हो जाती है। सो वी हैव लर्नड टुडे द रिव्यू 1 complete. My dear students, English is a very interesting language, although it looks a little bit difficult, but when you show your interest in this language, it would be a fun to know about English. If we want to keep pace with the modern world, we should have to learn English, we should have to talk in English. तो आप सिर्फ उस सूरत में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करें। जो कुछ आपको बोर्ड पे समझाया गया, जो कुछ आपको पढ़ाया गया, आप उसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ आती है, फ्लुएंसी बोलने में प्रैक्टिस के साथ आती है, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स प्रैक्टिस के साथ ख़त्म हो सकते हैं, और रोज़ाना अपनी बुक में से कोई ना कोई पैराग्राफ आपने डिक्टेशन के तौर पर, अपने राइटिंग पैराग्राफ के तौर पर लिखना है, और रोज़ाना का काम रोज़ाना ख़त्म करना है। विद बेस्ट विशेज़, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।